The News Hour Special Edition. Let's go down the memory lane a bit, viewers. A lot of you will remember just about 7 months ago when India had heartbreakingly lost the World Cup final match against Australia, Prime Minister Narendra Modi had consoled the team in Ahmedabad. Now, with the team winning in Barbados, the Prime Minister once again is there, albeit from afar, with the team in victory and defeat. Here is how he sent a message to the team after their World Cup win. टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। A very normal, justifiable, obvious congratulatory speech by a leader of a country whose team has just now had a major sporting achievement. But nothing in India can remain untouched by politics. The opposition chose this opportunity to take digs at the government and Prime Minister himself. For example, Kapil Sibal, RS MP, said that there is lesson for politicians in this T20 World Cup victory. Now, he did not specify which politicians, but once you go through the content of his post, it's pretty obvious what he is talking about and who he is talking about. He said it's a team effort, not a one-man show. One must take all players on board, listen to them, take their advice. That is what the government, the politicians should learn from the way Team India performed. Then came Supriya Srinath of the Congress, who asked why did Prime Minister not call the NEET scam victims? Because remember, the Prime Minister also dialed various members of the team to highlight their personal achievements and to congratulate them. She also asked why did PM not call the Manipur violence victims? Then she says that if PM has any issues getting the contacts of these people, they can offer some help. And then there was Bashir Ahmed of the National Conference, who said that the Prime Minister has started marketing the victory and taking credit, just like he did in the case of Pulwama and surgical strike, for what Army had done. फख्र की बात है, वर्ल्ड कप जीता और प्रधानमंत्री साहब ने कोई टाइम गवाए बगैर ही उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। जबकि हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हर एक चीज़ में मार्केटिंग कर लेते हैं। जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की भी मार्केटिंग की, उन्होंने बहुत सी चीज़ों में। तो मैं समझता हूं कि कम से कम ये जो मार्केटिंग है, ये फील्ड है, ये तो उन बच्चों को क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने क्रिकेट नहीं खेला, कोई रन नहीं बनाया। Is somebody trying to take credit? And if yes, then who is that? To answer that question, we've got Tuhin Sinha, BJP national spokesperson, joining us, and Ajay Verma of the Congress. Ajay Verma जी, आपका क्या कहना है जो बशीर जी कह रहे हैं कि पीएम मार्केटिंग कर रहे हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात है, उन्हें बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री का भी दायित्व होता है, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने इन्हें कहा, मित्रों मैं पिछले जन्म में क्रिकेटर था और क्रिकेट का कैप्टन था और मैंने भी पिछले जन्म में कई वर्ल्ड कप जीते हैं। ये नहीं कहा उन्होंने। तो ये देश के लोग क्योंकि जहां जाते हैं वो कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूं, मैं बंगाल पुत्र हूं, मैं बांग्लादेश पुत्र हूं, मैं सिख नहीं, पर जो मैं उन्होंने सरदार हूं। नहीं कहा अच्छी बात है, तो ये तो चलो ठीक है। जो उन्होंने नहीं कहा वो उन्होंने नहीं कहा। हम तो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके लिए बशीर अहमद जी को लगा कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब देखिए वो तो हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, विदेश यात्राओं में जाते हैं तो यहाँ से सारी सर, चीजें क्रिकेट लोग की बात करते हैं ना आप। चले जाते हैं, हम कहीं क्रिकेट कोई की चीज फील्ड पर होती है। खेल रहे हैं। अब देखिए वही मैच खेलते हैं। बता रहा हूँ, राम मंदिर पर कितनी जी सर, राम मंदिर छोड़िए को ना, कितना रोहित और राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं भगवान को भी करा तो भगवान ने उनको फल दिया। अच्छा, अब मैं आपको क्रिकेट टीम पे बताता हूँ जी। हमने अपनी तरफ से राहुल गांधी जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से और करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से देश की क्रिकेट टीम को क्रिकेट जीतने पर हमने भी बधाई दी। और देश क्रिकेट टीम सही कहा है कि भाई टीम भावना से खेली जाती है। सूर्य कुमार ने जो वो मैच लिया और वो उसका सारा रुख ही पलट दिया। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो 2 विकेट लिए तो उन जबड़े से जो है मैच जीत के लाए। तो ऐसे ही हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि नीट के छात्रों से जो उनका हक छीना गया है, जो करीब 1 करोड़ 60 लाख परिवार जन है, 32 लाख के करीब छात्र हैं, इसको रद्द करा जाए और जेपीसी बैठाई जाए और इनको मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही हमने कहा मणिपुर में जो आज तक उबल रहा है वहां भी प्रधानमंत्री फोन कर लें। पहलवान बेटियों से आज तक फोन पे बात नहीं करी, वो भी तो वर्ल्ड का गोल्ड मेडल जीत कर लाई थी 196 कंट्रियों में, जो हरियाणा की बेटियां थी। लेकिन नहीं करेंगे साहब बात। और जो हमने कहा था कि बॉन्ड घोटाला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसमें भी जरा जस्टिफाइड न्याय करके लोगों को न्याय दे दीजिए। तो हमारा कहना है खूब बधाई दें, जीते देश का नाम होता है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं शहर के, व्यापार के, नौकरी के, रोजगार के, तो आप ये मान रहे हैं कि मार्केटिंग नहीं है? के बारिश से सारी कलई खुल रही है कहाँ। तो आप ये मान रहे हैं कि मार्केटिंग तो नहीं है? तो इन्हें ध्यान देना चाहिए। नहीं, तो आप ये मान रहे हैं ना कि मार्केटिंग तो नहीं है ना? ये तो इनका एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि बड़े सही तरीके से वो अपने मौके को उठा के मुद्दों की चीजों पे फायदे से उठा के कर लेते हैं। जबकि उन्हें देश के हर टीम अगर वर्ल्ड कप जीते तो प्राइम मिनिस्टर उनको कॉल नहीं करे। चले आए अजय जी, तो अब आपके लिए क्या आइडियल सिचुएशन होती है कि टीम जीत जाए, प्राइम मिनिस्टर बोले जाने दो यार, हमको क्या, हम क्यों उनको इंकरेज करें, हम क्यों उनको देनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ही तो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों किया? देश के प्रधानमंत्री हैं वो। नहीं, हमने तो कहा कि ये भी कराए तो ये भी करना चाहिए, तो उस पर क्यों नहीं करेंगे? ये मणिपुर पर क्यों नहीं बोलेंगे? ये नीट पर क्यों नहीं करेंगे? तो रोजगार की बात पे क्यों नहीं करेंगे? काले धन पे क्यों नहीं बात करेंगे? अडानी के कोयले पे बात क्यों नहीं करेंगे? जेपीसी की जांच की मांग हम करते क्यों नहीं करेंगे? Let Tuhin Sinha answer that. Yes, Mr. Sinha. In the last 24 hours, Priya, in the last 24 hours, Congress has once again proved that beneath the superficial wheel of their newfound bravado and confidence lies a very petty mindset, and they can never grow out of their personal animosity and hatred for Modi ji, as a result of which they can't even, freely celebrate a national achievement. And that makes this Congress party a very pitiable Congress party. Prime Minister Modi's involvement with sports has been exemplary. He has not only called up, the cricketers, he has called up Para-Olympic winners. You can check that. He has personally, followed the journey of Para-Olympic winners. The Khelo India program, the centers of excellence have been instrumental in revamping India's sports infrastructure. Today, very soon, India's sports industry is going to be 1 lakh crore industry, which is going to generate immense employment besides getting new people into sports who had never imagined to make a career into sports. So, these people have such a petty mindset that they can't think beyond why did Modi not do this? Why did Modi not do this? Instead, they should be answering today, why did Rahul Gandhi not call up the Hooch tragedy victims' families in Tamil Nadu? Why has Rahul Gandhi not called up those families in Himachal Pradesh whose, government employees who have not got their salaries for months? They should be worried about that. As far as NEET is concerned, the government's action has been exemplary.
We don't need certificates from them. But I think this Congress party needs to at least celebrate national achievements without making it about Prime Minister Modi. All right, stay on with me, Toheen Sinha. We've got breaking developments coming in, and this fits right into Prime Minister and his encouragement for the team. The latest information that Times Now is getting is that Prime Minister Narendra Modi will be meeting the World Cup squad. They have been asked to reach the national capital directly after winning the World Cup. The team is expected to travel tomorrow. And the schedule, however, is subject to change as it depends on the weather situation as well. The team is going to take a private charter flight and land in Delhi on the 2nd of July. So, Karishma, after that big bonanza announcement for the cricketers, now they're all set for a meeting with the Prime Minister. What else is on the anvil? Well, yes, that's what we're given to understand. They were first expected to land in Mumbai, but that plan has, of course, changed. They are now set to meet the Prime Minister as well. There is a hurricane warning in Barbados. That is why the airport is going to be shut from 8 p.m. Tonight. One will have to wait and see what is, the after effects of the hurricane. And after that, they will decide what is going to be the next plan of action. But as of now, Team India is all set to depart tomorrow. It is going to be a 16-hour flight, which is going to be a direct flight from Barbados to Delhi, a private flight, which is going to land in the wee hours of the morning on the 2nd of July. And from there, the champions will, of course, go and meet the Prime Minister. And then players are expected to go wherever, they belong to in part of the country. But firstly and most importantly, they are going to land in Delhi, where a big, rousing reception awaits them and a meeting with the Prime Minister also awaits them. All right. Thank you, Karishma, for joining us with those details. So, team is all set for a mega welcome to be hosted by none other than the Prime Minister himself. Ajay ji, आपको लगता है ये भी headline management, event management, spotlight management है? देखिए, देश का और विदेश का जब कोई भी अखबार या कोई भी बड़ा न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार की बुराई करता है तो वो एनिमी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। और जब कोई भी सही बात या गलत बात पे इनकी तारीफ करता है तो 56 इंच का सीना फूल कर चौड़ा होकर वो कहते हैं बहुत अच्छा है। तो ये दोहरा मापदंड बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक चीज और भूल गया अपनी तरफ से। हम तो इस मापदंड की बात ही नहीं कर रहे। मेरा सवाल तो कुछ और ही है। एक सेकंड सर, मैंने आपसे मेरा सवाल ये था। एक सेकंड मेरा सवाल ये था सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कम्युनिकेशन में एरर हो गया है मेरी तरफ से। मेरा सवाल ये था कि कल टीम आएगी, प्राइम मिनिस्टर से मिलेगी, क्या आपको लगता है ये भी हेडलाइन मैनेजमेंट का एक स्ट्रैटेजी है? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं एक चीज भूल गया था। 10 सेकंड उस पर बोलकर फिर आपके जवाब दूंगा। देखिए, देश की महिला खिलाड़ियों ने जो क्रिकेट में इतिहास रचा है, शेफाली वर्मा एक हरियाणा की बहुत बड़ी प्लेयर है और देश के स्वर्णकार समाज की बेटी है। उसने 205 रन यानी डबल सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड में एक इतिहास रचा है। हम बधाई देना चाहते हैं देश की आधी आबादी महिला टीम को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी महिला टीम को और महिला उसको बधाई देनी चाहिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद। बेटियां हैं वो, लेकिन चूंकि वो नहीं देंगे। पहलवान बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आई थी हरियाणा की, क्या वो प्लेयर नहीं थी? वो भारत की आन बान शान नहीं थी? वो भी तो पोडियम पे 196 कंट्रियों में गोल्ड मेडल लेके आई थी। लेकिन उनकी पीड़ा और उनका कष्ट और उनसे बात तो आज तक प्रधानमंत्री ने करी। बहुत ही इनडायरेक्टली सोनकर मेंशन कर दिया इसमें, तो उसका इंटेंट तो वी डोंट कंडोन ओवर हियर कि आप जो कह रहे हैं जबर हर चीज में कास्ट और पॉलिटिक्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। बट तुहिन सिन्हा, डू आंसर द क्वेश्चन दैट ऑपोजिशन इज अलेजिंग दैट Prime Minister is choosing who he congratulates and who he does not, depending on the mileage that he gets out of it politically. The Congress is ignorant. शायद इनको पता नहीं है कि पहली बार पिछले 2 सालों में जो महिला और पुरुष टीम है क्रिकेट की टीम में, उनके पेमेंट को बिल्कुल जो है एक समान कर दिया गया है। आपको कम से कम जानकारी होगी, 15 लाख प्रति टेस्ट मैच, 6 लाख प्रति वनडे इंटरनेशनल और 3 लाख प्रति T20 इंटरनेशनल। ये इक्वालिटी बहुत कम देशों में है और भारत ने पिछले 2 वर्षों में ये पहल लिया है। तो ये कहना कि आपने बधाई उसको नहीं दी, अरे ये लोग बिना मतलब का। मैं दोबारा से इनसे अनुरोध करता हूं, इनसे आग्रह करता हूं कि स्पोर्ट्स के विषय पे कम से कम राजनीति ना करें। आपका जो नफरत है मोदी जी के प्रति वो सब जग जाहिर है, लेकिन कम से कम खुश होना सीखिए।
Don't be so low life. I'm sorry to use the word, but I think the Congress party needs to celebrate these अनफॉर्चुनेटली occasions. अजय जी, हर चीज में हिपोक्रेसी भी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज आप जब मोदी को बोलते हैं कि वो क्रेडिट लेते हैं, आपकी जब अपनी सॉरी फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई वर्मा जी। हेलो जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी मुझसे पूछिए दोबारा से। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, आई कुडंट हियर यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रिपीट। ये पॉलिटिकल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुहिन जी हर चीज में पॉलिटिकल एजेंडा मत चलाइए। देश की बेटियां पहलवान बेटी खिलाड़ी नहीं है क्या? Talking of political agenda, let me just show you what your own party's Haryana handle has tweeted. They have also put out a picture of Rahul Gandhi right next to Rahul Dravid. If I could request the PCR to put out that picture for our viewers as well. हर चीज में पॉलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं है. There is no reason to compare Rahul Dravid with Rahul Gandhi in this case. One is politics, one is cricket. They are best left separate to each other. You have your battlegrounds to conquer. Tomorrow Parliament session begins. Congress can very well do that and fight with the BJP over the issues that they have on their mind. Thank you, gentlemen, for joining me. Actually, stay on with me, because after this debate, we are talking about yet another fight that is all set to play out on the floor of the House tomorrow. The fight for Deputy Speaker's post. The News Hour Special Edition.